بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی کہانی جو صرف ایک عام کہانی نہیں بلکہ ایمان اور صبر کی مثال ہے۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو اپنے عقیدے، اپنی محبت اور اپنے صبر کے ذریعے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور کیسے اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا۔ تو دوستوں، اپنی پوری توجہ دیں اور ہمارے ساتھ اس قدرتی واقعہ کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کے کئی بڑے امتحان دیے۔ ایک بار کی بات ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن دیکھیے، اللہ کی رحمت ایسی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے والد نے اللہ کے خلاف بیان دیا اور کہا، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو تم میرے گھر سے باہر ہو جاؤ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے فلسطین میں بسنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہر دن، ہر رات اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹا نہیں ہوا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں امید زندہ تھی اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آخر کار 84 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ سوچئے، ایک بوڑھے باپ کو جب اتنی عمر میں بیٹا ملا تو ان کی خوشی اور محبت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتے، چومتے اور کندھے پر بیٹھا کر بازاروں میں گھماتے۔ لیکن جب یہ خوشی آئی تو ایک بڑا امتحان بھی آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی اہلیہ اور بیٹے کو خود سے دور بھیج دو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، میں اپنی اہلیہ اور بچے کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ بتائے گا۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو اونٹ پر سوار کیا اور خود بھی اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چل رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکلے، کئی شہروں کو پار کیا اور گھنٹوں کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرب پہنچے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چل رہا تھا۔ نہ انسان، نہ کوئی پرندہ دکھائی دے رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک واڑی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکا، وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ لیکن 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی اہلیہ اور بچے کو یہیں اتار دیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب انہوں نے خاموشی سے اللہ پر توکل کیا اور فرمایا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، اپنی اہلیہ اور بیٹے کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو،
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहने लगे, ऐ जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है न खाना, मेरी अहलिया और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाएं। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपनी बीवी और बच्चे को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूं, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपनी बीवी और बच्चे को इस छोटी सी झोपड़ी में बैठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शौहर को जाता देख बीवी हजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी, आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों यहां मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हजरा को कोई जवाब न दें और चुपचाप फिलिस्तीन की तरफ चले जाएं। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा और आंखों की ठंडक होगा, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट चल रहा था और बीवी हजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि यह हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हजरा रोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल करती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि चुप रहें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप थे, मगर उनके अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की यह हालत देखकर उनका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान खामोश थी। बीवी हजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी, आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इस तरह हजरत हजरा अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रहीं और अपने शौहर से बार बार सवाल करती रहीं, लेकिन हजरत इब्राहिम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचते ही हजरत हजरा जब बहुत ज्यादा थक गईं, तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बच्चे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पत्थरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा, हाँ ए हजरा, यह अल्लाह का हुक्म है। हजरत हजरा ने जब यह जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शौहर से कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूं। इतना कहकर हजरत हजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखती रहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतर गया, तो हजरत हजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया और बीवी हजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह,
आप ही के हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ न पानी है न खाना। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वह अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सिया पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, जरा सोचिए वह क्या मंजर होगा जब बीवी हजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। आसमान के सितारे भी आज बीवी हजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि यह कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सिया पहाड़ भी बीवी हजरा को देखकर हैरान होते होंगे कि यह कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है? दोस्तों, ये हमारी माँ बीवी हजरा थी, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थीं। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है, वह तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन बीवी हजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वह इस वीरान इलाके में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फिलिस्तीन चले गए तो हजरत हजरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था। हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होंगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूं। इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वह पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हजरत हजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर ना आया। फिर बीवी हाजरा दौड़ते हुए दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गईं, कुछ सोचते हुए कि शायद वहां से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आज मक्का की सियाह और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पते देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी, यह सोचते हुए कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यारे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहां तो हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। हजरत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसीलिए वह बचपन से महलों में पली बढ़ी थी, राजकुमारियों की तरह थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीवी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए। लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती थी। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी तलाशते तलाशते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जलाकर आग बना दिया था। बीवी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था
और वह बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिरकार हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर गईं। उनके अंदर अब पानी तलाश करने की हिम्मत नहीं बची थी। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वह अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की यह तड़प देखकर बीवी हाजरा की आंखों से बार बार आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में यह बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। आखिरकार हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं इस पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासे मौत की गोद में चला जाएगा। हे अल्लाह, हम बेबस माँ और बेटे की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सिर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसलिए परेशान होकर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गईं। बीवी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंच गईं तो अचानक वह इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल के पैरों के पास से पानी निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीवी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चल पड़े। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गईं कि अब अल्लाह की मदद आ चुकी है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। और वह अल्लाह के सामने सजदा में गिर गईं और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीवी हाजरा ने अपने प्यारे बच्चे इस्माइल को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक घेरा सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इस चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीवी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन बिताने लगी। वह जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। क्योंकि अब वहां पानी आ गया था तो अब खजूर भी और फल भी वहां आ रहे थे। कई महीने इस तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ देखा तो कहा कि यह परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी भी यहाँ पानी न मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी न होता तो यह परिंदा इस जगह नजर न आता। इसलिए जाओ और इस मामले की तहकीकात करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वह आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वह बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि हे मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वह जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा कि हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ए औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से यह पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इस पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यह सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि है नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे घर के पास अपना घर बना लें और इस जगह पर आबाद हो जाएं। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना
कि यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश न करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ए नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के पास ही अपने घर बना लिए। इधर फलस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि ए अल्लाह, मुझे मेरी बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत दें। इस तरह एक एक साल गुजर गया, लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत नहीं मिली। एक साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखकर वापस आने को कहा, रुकने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। एक महीने के सफर के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी बच्चे को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊंटनी पर बैठे अपने शौहर को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत दी गई है। हजरत हाजरा से उनके शौहर ने कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं है। शौहर का यह जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हजरत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा, मुझे मेरा बच्चा पकड़ाओ। हजरत हाजरा ने अपने शौहर को बच्चा सौंप दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया और गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल हो चुकी थी। 40 साल की दुआओं के बाद यह बच्चा उन्हें मिला था और अब उन्हें उससे जुदा होना पड़ रहा था। जब उन्हें मिलने की इजाजत दी गई तो वह भी साल में सिर्फ एक बार और बहुत कम वक्त के लिए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए इब्राहिम, आप वापस फिलिस्तीन लौट जाइए और अपनी बीवी बच्चे को इस वीरान इलाके में अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो हजरत हाजरा की हालत क्या हुई होगी, जरा सोचिए। एक मासूम बीवी पूरे साल अपने शौहर का इंतजार करती रही और जब शौहर आए भी तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए और ऊंटनी से भी ना उतरे। अगर वह आते ही नहीं तो शायद सब्र आ जाता, लेकिन मिलकर फिर से चले जाना, इससे दिल में आग जल उठी। शौहर की यादें फिर से ताजा हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। हजरत हाजरा वीरान इलाके में खड़ी अपने शौहर को जाते हुए देख रही थी। वक्त बीतता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ मक्का के वीराने में जिंदगी बिता रही थी। 7 साल बाद इसी तरह 7 साल गुजर गए। अब हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए थे। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वह दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद किया करते थे। हजरत इब्राहिम का सपना 7 साल बाद की एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सुना, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ख्वाब देखकर वह सुबह उठे और 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। जब वह नींद से जागे तो समझ गए कि यह इशारा उनके बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे से थी। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह यही चाहता है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। यह सपना देखने के बाद अगले दिन उन्होंने एक तेज धार वाली छुरी ली और ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल हो चुकी थी। दोस्तों, जरा इस बुजुर्ग बाप का दर्द महसूस कीजिए। 40 साल की दुआओं के बाद उन्हें एक बेटा मिला और फिर उसके साथ रहने की भी पूरी खुशी नसीब नहीं हुई। कई सालों बाद जब उनसे मिलने की इजाजत मिली तो साथ ही यह हुक्म भी मिला कि ए इब्राहिम, अपने बेटे से मिलो, लेकिन छुरी भी साथ लेकर जाओ और उसे कुर्बान कर दो। ऊंटनी के हर कदम पर हजरत इब्राहिम का दिल दर्द से छलनी हो रहा था। एक तरफ अपने प्यारे बेटे से मिलने की खुशी थी
तो दूसरी तरफ यह ख्याल कि उन्हें उसे कुर्बान करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा। इधर हजरत इस्माइल रोज अपनी माँ से पूछते, अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन हैं, वो कहाँ हैं और मुझसे कब मिलेंगे। हजरत हाजरा उन्हें दिलासा देती, बेटा फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। जब हजरत इब्राहिम 1 महीने के सफर के बाद मक्का पहुंचे तो हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हजरत इस्माइल ने पहली बार अपने अब्बा को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगाया और अपनी बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, आज मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर हजरत हाजरा भी बहुत खुश हुई कि चलो, आज पहली बार उनका बेटा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बेटे के लिए अल्लाह का कुछ और ही फैसला हो चुका है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बेटे को तैयार किया और हजरत इब्राहिम उन्हें लेकर मिना की वादी की तरफ चल पड़े। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को हंसते खेलते देख कभी खुश होते और कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वह जानते थे कि वह उसे कुर्बान करने जा रहे हैं। जब वह अपने बेटे को लेकर जा रहे थे तभी शैतान एक इंसान की शक्ल में आकर हजरत इब्राहिम से मिला और पूछा, ए इब्राहिम, तुम कहां जा रहे हो। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं एक काम से जा रहा हूं। शैतान ने पूछा, क्या तुम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को कुर्बान करता है। शैतान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा। शैतान नाकाम होकर हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास गया और उनसे कहा, इब्राहिम, तुम्हारे बेटे को लेकर कहां गए हैं। हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को कुर्बान करता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें भी भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म से मुझे कुर्बान करने जा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है। जब शैतान नाकाम हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकड़ मारे और वह भाग गया। इसी तरह 3 जगहों पर उन्होंने शैतान को कंकड़ मारे और आज भी हज के दौरान हाजी इसी तरह कंकड़ मारते हैं। बेटे की कुर्बानी और अल्लाह की रहमत। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने हजरत इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल ने फरमाया, अब्बा जान, मुझे मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे सब्र में कमी न हो जाए और मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पर न पड़ें, ताकि मेरी अम्मी गमगीन न हों। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने अपनी छुरी तेज की और बेटे के गले पर चला दी, लेकिन छुरी ने काम नहीं किया। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच्चा कर दिखाया। हमने तुम्हारे बेटे की जगह एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए भेज दिया है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बड़ा मेंढा लेकर आए और ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब यह सुना तो समझ गए कि अल्लाह की आजमाइश खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा, अल्लाहू अकबर, लिल्लाहिल हम्द। यही 3 पाक हजरत के कहे हुए शब्द आज तक कुर्बानी के वक्त दोहराए जाते हैं और यह सुन्नत कयामत तक के लिए जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी खत्म होती है, लेकिन इसमें छुपी हुई सब्र और ईमान की तालीम हमेशा हमारे साथ रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह मिसाल हम सब के लिए है, जिसे हम अपनी जिंदगी में अपनाएं और अल्लाह की राह में अपना सब्र और ईमान मजबूत करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।